तो जब ये निर्जीव लोग मिल कर इतना बड़ा बन जा रहे हैं, तो हम जैसे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर क्यों इस भारत को भारत क्यों नहीं बना सकते? So that is why I started working for this nation. Now today I proudly can say that I am so happy because I am serving guys. एहसान से राहुल बन जाओ, राहुल से एहसान बन जाओ, because of security, because of this nation guys. All right. Ladies and gentlemen, we all have gathered here in the name of our nation. A feeling of nationalism is running through our hearts and minds. The unimaginable sacrifices made by our forefathers, ancestors, and freedom fighters can never be paid into words. This day holds a very strong importance in our past, as the true meaning of freedom was recognized this day. I wish you a very happy 78th Independence Day. To mark this day memorable forever in our hearts, let's commemorate 15th of August by inviting our esteemed chief guest. I would like to... सस्ता वाला लो, हम क्या महंगा वाला लिए, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। बात यह है कि किस्मत ब्राह्मण के घर में पैदा हो गई, तो पंडितापन मम्मी बचपने सिखा दी ने। हालांकि पंडितापन नहीं की ने, हमारा बप्पो नहीं की ने, दूध ब्याते जाते रहे, वह बात अलग है, लेकिन पंडितापन नहीं की ने। लेकिन आवत बहुत अच्छे से 10 के 20 निकाल लेवे। तो हाँ, अरे छोड़ो ये सब बातें, अब पर्सनल बातें क्या बताई। यूट्यूब पता नहीं कितने मिलियन हो गए, गिने नहीं आवत आए। देखो है, बताइस ना, बताइस कि नहीं बताइस? आई क्या मतलब? पढ़ी रही अंग्रेजी में बताइस, वो सीखना चाहती हो? बात हमको हो कि नहीं अपने कैब सर की कर रही ना, जो अंग्रेजी में है इतना धनी ता धनी ता धनी। हाँ, उतने जितने बताएं, ठीक, उतने फॉलोवर्स है। आज अमीरम खेल रहे हैं, कल करोड़ों में खेलिए, मिलियन टिलियन पिलियन में जाइए। बाकी अंग्रेजी वो सीखबे तब बताइए। तो क्या चाहती हो गाइस, बुलावा जाए अपने सर का? ये आवाज आई पीछे से, अंग्रेजी में कितने पीछे देखा, डायरेक्ट मुंडे कनेक्शन है। गुब्बारा फूटी रे, हल्के में ना ले, हल्के कनेक्शन कहाँ थे? तो बुला लीजिए। तो बहुत ही आदर के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे प्यारे सर का, जो है हमारे प्यारे कैब सर। आइए सर। स्टेज पर जो पधार रहे हैं, स्टेज पर जो पधार रहे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। स्टेज पर जो पधार रहे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे मजदूर की जान है। Oh my God! Thank you very much. Arey, it's okay, man. You are making me feel that it's marriage of mine today. The way these people have welcomed me, I was feeling like, oh my God, thanking those people who have sacrificed their lives for this nation, for this India, ladies and gentlemen. I don't know what I'm gonna speak about today, but here's something that comes in my mind right now to talk about. I need to say that. Like somebody was talking about 3 millions. Let me remind you, we do not have 3 millions. But yes, what a great prediction for future. Yes, people who are watching the video, inshallah, one day we will have 3 millions as well. But guys, you know what? I'm not happy having 3 lakh subscribers. I'm not happy like somebody was talking about लाखों में खेलत हैं. I'm not happy about that. I'm just earning a lot of money. But yes, I'm happy because of one thing. That though so many people are just using camera as well in front of me, your capture is speaking, right? I'm not happy about that as well. But yes, I'm happy because I have been a chota mota nanna munna banda of this India serving these people, guys. So
That means a lot for me. That really means a lot for me. I feel so honored and so privileged that I'm serving this nation, guys. Let me tell you the truth. Let me tell you the reality. When I was just, I think, a teenager, when I was 16 or 17 years old. So, the society I belong to, their people used to say that, excuse me, dear calf, you should learn English language, and in future you have to go Saudi Arabia, you have to go Dubai to make money. At that time, I was devoted. I was completely focused on English, and my intention of learning English was to make money in Saudi Arabia, in Dubai, guys. But as I grew up, as I made myself aware, then I just came to know the real emotion of Indianisms. I came to know the real beauty and duty of this nation. I just forgot thinking about even going to Saudi Arabia and Dubai. Because whatever we have, perhaps nobody has. Whatever we have in India, perhaps not even other country has, guys. So that is why I started working for this nation. Now, today, I proudly can say that I am so happy because I am serving, guys. Now, one of the most important things that I would like to talk about here. We can talk about Mahatma Gandhi, we can talk about so many freedom fighters, but let us not focus on what people talk about. Listen to me carefully here. Let us not talk about the things that the people talk about. Like today, I think programs must be conducting all over India, entire India. So the people would be talking about Mahatma Gandhi, the people would be talking about, so many freedom fighters. But let us talk about some of the things that people do not talk about. What is that? Let me talk. Here, just because of these three colors, guys, let me just show you. I just came today in the morning, I just had one flag. When we see this flag, माँ कसम, ऐसी feeling तो मुझे लगता है कहीं नहीं आ सकती. Sometimes we fight because of this color. Sometimes we fight because of this color. Now you must be understanding what I'm talking about. Yes, sir. मतलब लोग तिरंगा तोड़ना कितना पसंद करते हैं आजकल. कोई भगवा कलर की लड़ रहा है, कोई हरे कलर की लड़ रहा है. तो we the people of India, if you're Hindu, I salute you. If you're Muslim, I salute you. But मैं सल्यूट तो कर सकता हूं आपके हिंदू होने पर, मैं सल्यूट कर सकता हूं आपके मुस्लिम होने पर, मैं सल्यूट कर सकता हूं आपके क्रिश्चियन होने पर, लेकिन अगर आप इस भारतीयता की इंसानियत अगर लेकर आएंगे तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा. आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, मैं आपको सल्यूट कर सकता हूं क्योंकि आपके पास आस्था है. लेकिन मां कसम अगर आपके अंदर इंसानियत है, मैं सच में आपको दंडवत प्रणाम करूंगा. बिकॉज यू आर रियली ट्रू ह्यूमन गाइस. सो गाइस, let us really see in our society whatever is lacking, whatever the deficiency is belonging, whatever the deficiency is existing right now. Let us eradicate that, because we are so called Indians right now. We become so called Indians, in this generation. So let us understand the real beauty and real duty of this India, guys. एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसके बाद फिर मैं ब्रजमान हूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट का भाषण तो डेली चलता रहता है. क्लास में कैब सर यही डेली मिलते हैं आपको जो है डिबेट करने के लिए. डू डस कैन में माइट कंडीशनल सेंटेंस हैज़ टू हैव टू मिलता है. लेकिन आज जो है मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ, बट यस एक बात याद है कि मुझे लगा कि बात करनी चाहिए. यस, सो लास्ट थिंग गाइज, जब मिट्टी आपस में मिलती है तो ईंट बनती है. जब ईंट आपस में मिल जाती है तो शायद दीवार बनती है. जब दीवार आपस में मिल जाती तो एक रूम बनता है. अब जब रूम सब मिल जाते तो क्या बनता है? घर बनता है. और जब घर मिल जाता है तो क्या बसता है? एक सोसाइटी, एक समाज. और जब समाज बस जाता है तो क्या बनता है? एक गांव, राइट. अब जब गांव बसता है तो क्या होता है? एक टाउन बसता है. जब टाउन मिल जाता है तो एक शहर बसता है. और जब शहर बसता है तो क्या होता है? एक स्टेट बनता है. जब स्टेट मिलता है तो क्या बनता है? एक नेशन. और जब नेशन मिलता है तो क्या बनता है? वासुदेव कुटुंबकम, राइट. नेशन तक ही रहते हैं क्योंकि भारत की बात आज है, राइट. स्टेट मिलता है तो भारत बनता है. तो जब ये निर्जीव लोग मिलकर इतना बड़ा बन जा रहे हैं, तो हम जैसे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर क्यों इस भारत को भारत क्यों नहीं बना सकते?
एग्जैक्टली आए दिन सुनने को मिलता है कि एक मुस्लिम लड़की का रेप हो गया है, हिंदू भाई हंस रहे हैं, हिंदू लड़की का रेप हो गया, मुस्लिम भाई हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगेंस्ट जो है रिलीजियस, उनका हो गया, बड़ा हंसते हैं, अरे अच्छा हुआ अच्छा हुआ। 2 मिनट लूँगा आपका, बस सुनिए गौर से। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की, उस लड़की का नाम था दरक्षा, मुस्लिम लड़की, नकाब लगा के ट्रेन से ट्रैवल करती है। जब ट्रैवल करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, शी वाज ट्रैवलिंग आई थिंक फॉर दिल्ली, तो जैसे वो ट्रेन में बैठती है तो वहाँ पे कम से कम 10-15 लुक्खे आते हैं, बहुत हूटिंग करते हैं, ओ हेलो ये वो। नकाब लगा के लड़की बैठी थी, बड़ी डर रही थी, तो कुछ लड़के वहाँ पे थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे थे, इंप्रेस कर रहे थे, तो उसी में से एक लड़का पास एकदम आ गया और डरने लगी लड़की दरक्षा। तो वो लड़की पूछी कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, वो बोली कि चले जाएं, तो वो लड़का कहे नहीं आप अपना नाम बताइए, काँपते काँपते करी मेरा नाम दरक्षा है। तो वो लड़का बोला कि मेरा नाम एहसान है। तो दरक्षा सोची कि लड़का मुस्लिम है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई, तो पूछा लड़का एहसान कि दरक्षा आप कहाँ से हैं? तो बोली मैं इलाहाबाद से हूँ। दरक्षा बोली, तो करी ओ इलाहाबाद से? इलाहाबाद से तो मैं भी हूँ। और लड़की थोड़ा और कंफर्टेबल हुई। फिर एहसान पूछा अच्छा इलाहाबाद कहाँ से आप हैं? तो कहीं लोकेशन बताई, करे किसकी बेटी हैं? तो अपने पापा का नाम बताई, करे पापा, आपके पापा तो मेरे दोस्त हैं। तब तो एकदम कंफर्टेबल हो गई, जाने लगी दरक्षा एहसान के साथ। और जो लड़के थे एहसान सबको कहा चलो यार साइड तुम लोग हो जाओ, हाँ मैं इसके साथ बैठूंगा। तो सब चले गए लड़के। एक स्टेशन आता है, एहसान कहता है दरक्षा अब मुझे उतरना पड़ेगा, आपके साथ मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दरक्षा थोड़ा भावुक होती है, कहती कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी, क्योंकि बहुत सारे लुक्के थे, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने मुझे सिक्योर करा। तो हुआ यूँ कि दरक्षा बोलती है कि कभी भी इलाहाबाद आना तो मिलना ज़रूर। तो वो एहसान बड़ा भावुक होकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा नाम एहसान नहीं, मेरा नाम राहुल है। तो राहुल कहा कि मुझे राहुल से एहसान बनना पड़ा क्योंकि आप एक मुस्लिम महिला हैं, मुझे सिक्योर करना था, इस वजह से मैं एहसान बन गया। मैं कोई एहसान नहीं हूँ, मेरा नाम राहुल है और मैं किसी इलाहाबाद का नहीं हूँ, मैं किसी आपके पापा को नहीं जानता, बस ऐसे झूठ बोल के बस आपको सिक्योर करना चाह रहा था। यहाँ से हमें सीखना क्या है कि कभी भी किसी महिला की इज्जत बचाना है, एहसान से राहुल बन जाओ, राहुल से एहसान बन जाओ, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ दिस नेशन गाइस। ऑलराइट।